All right, so we are going to actually start with sales variances, right? As I promised in the class. So, first of all, this is a simple scenario where the company is only selling one single product, which is T-shirt, right? So the budget was around that the company actually wanted to sell 5,000 units at a selling price of $50 per unit. But what happened in actual was that actual sales volume was higher than the expectations and also the selling price. So what we have to do here right now is to calculate sales price variance and sales volume variance, right? So let's start with sales price variance, right? Sales price variance is simply the difference between what was the expected selling price and what is the actual selling price. So the expected selling price or the standard selling price is around $50 per unit, but the company sold all units at an average price of 51.2. So obviously this will result in higher revenue, so it's going to be a favorable variance. Multiply by 1.2 times, multiply by now this one unit generated 1.2 extra dollar, and the company actually sold 5200 units, right? So that means the overall impact will be $6,240, right? This will be the overall impact. Now, sales volume variance. Sales volume variance actually measures the difference between the expected sales volume and the actual sales volume. So the expected sales volume was 5,000. Company wanted to sell 5,000 units, but in reality, the company overall sold 5,200 units. So overall, sales volume are higher, right? Multiply by the standard contribution. अच्छा, ये selling price से multiply नहीं होता, ये मैंने पहले भी कहा था. ये contribution या GP से multiply होता है, whatever the company is using. So in this question, contribution to sales ratio is given, which is 20%. इसका मतलब है कि contribution is 20% of sales revenue or selling price, right? So standard selling price हम लेंगे, actual नहीं लेंगे. So 50 times 20% is 10, right? So 10 times 200 is 2000. ये भी favorable है because actual sales volume are higher. So overall sales variances are $8,240 favorable. So obviously आपका profit इससे बढ़ जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो दूसरा सिनेरियो है वो ये है कि लेट्स सपोज़ आपने 2 साल 3 साल 4 साल तक आपने टी शर्ट सेल आउट किया. फिर आपने सोचा कि चलो यार अब मार्केट में अपनी थोड़ी सी एक पोजीशनिंग करते हैं, तो आपको किसी ने मशवरा दिया कि यार टी शर्ट्स के साथ शर्ट भी सेल आउट करनी शुरू कर दो. ठीक है, तो आपने कहा चलें ठीक है. नाउ वी आर मेकिंग अ बजट ऑफ टू प्रोडक्ट्स, राइट? वन इज़ टी शर्ट एंड वन इज़ शर्ट, राइट? सो लेट्स सपोज ये 2020 का डेटा था. नाउ वी आर इन 2023 मे बी, राइट? सो हमने ये सोचा कि जो बजट था वो ये था कि हम तकरीबन टी शर्ट्स के या यूँ कह लें कि टी शर्ट्स के हमने सोचा था कि हम कुछ 20,000 यूनिट सेल आउट करेंगे बिकॉज़ हम ग्रो कर गए हैं. और शर्ट्स का मेरे जहन में था कि हम 5,000 यूनिट सेल आउट करेंगे, राइट? इसको हम कर लेते हैं यूँ कि ये बजट है और ये बजट में सेल्स वॉल्यूम है और ये सेलिंग प्राइस है. सेलिंग प्राइस जो है वो अब इन्फ्लेशन को अगर हम देखें तो ये तकरीबन 60 पे पहुंच गई है बिकॉज़ वो 2020 की बात थी, ये 2023 की बात है. और शर्ट्स जो है वो हम तकरीबन $80 की सेल करेंगे, ऐसा हमने सोचा था, राइट? एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में ये हुआ कि सेल्स वॉल्यूम जो है वो 18,000 हो गया. और या चलें इसको आप कर लें, हाँ चलें 18,000 कर लें और आप इसको 6,000 कर लें. तो हाँ चलें ऐसा कर लें, ठीक है. और सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी हो गई लेट्स सपोज 63, और लेट्स सपोज ये हो गई 80.5, या लेट्स सपोज उसको हम 79 कर लेते हैं, ठीक है. और लेट्स सपोज हमें कंट्रीब्यूशन भी पता है. कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो इज़ 20% for both products, right?
अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। आई मीन इनिशियली हम सेल्स प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकालेंगे, फिर मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंस पे आएंगे. सो आई एम just trying to explain it here. We will first calculate sales sorry sales variance is divided into two parts: sales price variance and sales volume variance, and volume variance is divided into mix variance and quantity variance, right? So अभी हम ये चार variances calculate करेंगे. ठीक है, तो sales price variance is quite easy. Sales price variance is simply the difference between expected and the actual selling price. तो हमने 60 का सोचा था, हमने 63 का सेल आउट किया, मल्टीप्लाई बाय 20 एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम विच इज़ 18,000. सो 18,000 टाइम्स 3 इज़ 54,000. तो ये तो हो गया फेवरेबल, क्योंकि आपने एक्सपेंसिव मटेरियल बेचा, प्रोडक्ट बेचा है. ठीक है, ये हो गया सेल्स प्राइस वेरिएंस ऑफ टी शर्ट. और शर्ट्स का क्या हुआ, शर्ट्स को हमने सोचा था कि हम 80 पे सेल करेंगे, वी सोल्ड एट 79, सो इट्स एडवर्स. मल्टीप्लाई बाय actual sales volume is 6,000, so the resulting variance will be 6,000 favorable. So favorable और adverse दोनों को अगर हम नेट ऑफ करें तो 48,000 ये बनता है फेवरेबल. ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस पे. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो वी विल स्टार्ट विद टी शर्ट्स, राइट? T-shirts will tell you that budgeted sales volume was 20, actual sales volume is 18. तो इसका मतलब है कि आपने इसके 2000 यूनिट्स कम सेल आउट किए, मल्टीप्लाई बाय द contribution is 20% of selling price, so we have to consider the standard selling price. So 60 times 20% is 12. So 12 twos are 24, so ये 24,000 होगा. और and since the actual sales volume is lower, so we'll say that this is adverse variance. Right. Shirts के साथ क्या हुआ, shirts के साथ हमने we thought that the company will sell 5,000 units, but actually we sold 6,000 units. So it's a good thing that you sold more quantity as compared with your expectations. Multiply by the contribution is 20% of 80. So 2 8 is 16, 16 multiplied by 1,000 is 16,000 favorable. So overall this will be 24 and 16, it's going to be 8,000 adverse, right? अच्छा, अब टोटल सेल्स, अच्छा चलिए टोटल सेल्स को तो भी छोड़ दें, तो ये तो अलग अलग हमने वेरिएंसेस निकाली है. अब हम इस 8,000 का ब्रेकअप निकाल रहे हैं कि 8,000 को हम किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, राइट? सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मिक्स वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस. सो लेट्स चूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस. लेट मी टेक ऑरेंज कलर फॉर दिस, राइट? सो मिक्स वेरिएंस के स्टेप्स बिल्कुल वही होंगे जो हमने अभी देखे थे. सो सेल्स मिक्स वेरिएंस विल बी व्हाट? Sales mix variance is basically this examines that what should have been the standard proportion of sales volume and how and in what proportion we sold. I mean ऐसा तो नहीं है कि हमने लो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सेल आउट कर दिया और हमने सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा दिखा दिया. सो सबसे पहले इसमें हम ये करते थे कि हम वी यूज़ टू टेक द परसेंटेज, स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ सेल, राइट? सो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ तक है, ओके. So in this question, the overall budgeted sales volume was around 25,000. 20,000 units and 5,000 units. 25,000 units का budgeted sales volume है. Actual sales volume is 24,000, right? So अच्छा, 25,000 में 20,000 has to be t-shirts. So 20 divided by 25 will tell you 80% t-shirts का estimate था मेरा, 20% shirts का estimate था मेरा. So if we have sold 24,000 units, then definitely we should follow the same proportion. तो इसको हम लिखते थे actual sales in standard mix, right? और ये है 24,000 यूनिट्स जो है वो आपकी एक्चुअल सेल्स हैं.
अब हम उसमें स्टैंडर्ड मिक्स अप्लाई करेंगे टी शर्ट का. टी शर्ट इज़ शुड बी 80% ऑफ द टोटल सेल्स and shirt should be 20% of the total sales, right? So 24,000 का अगर हम 80% निकालते हैं तो ये आता है 19,200. तो this should be 19,200 और 20% of 24,000 is 4,800. So ideally this should have been the sales volume, but actual जो हमने sales की, actual sales volume कितना था? एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम 18 और 16 था, राइट. सो 18,000 और 6,000. अच्छा, ये 48,000 नहीं है, 4,800 है, ठीक है. तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि जहाँ पे मुझे 19.2 यूनिट सेल आउट करने थे वहाँ पे मैंने 18,000 यूनिट सेल आउट किए. सो एक्चुअली आई सोल्ड लेस यूनिट्स, राइट. So 19,200 minus 18,000 will give you around 1,200 units, right? So 1,200 units, and यहाँ पे, और चूँकि हमने कम सेल किया इसलिए ये एडवर्स होगा, और यहाँ पे 1,200 यूनिट्स हमने ज़्यादा सेल किए इसलिए ये फेवरेबल होगा, ठीक है. मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये वॉल्यूम वेरिएंस का ब्रेकअप है, क्योंकि हम वॉल्यूम वेरिएंस को स्प्लिट कर रहे हैं, और वॉल्यूम वेरिएंस या तो प्रॉफिट पे मेजर होता है या कंट्रीब्यूशन पे मेजर होता है. तो मिक्स और क्वांटिटी दोनों ही कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट पे जाएगा. सो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन जो हमने निकाला था वो था टी शर्ट्स का 12 और शर्ट्स का 16. यस. सो टी शर्ट का कंट्रीब्यूशन था 12 और शर्ट्स का था 16. तो वेरिएंस जो है, जो मिक्स वेरिएंस हो जाएगा वो हो जाएगा 12 टाइम्स 1,200 is 14,400 and 16 times 19,200. ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है. तो 19,200 माइनस 4,800 ये आया फेवरेबल. फेवरेबल का मतलब हमने डिस्कस किया था कि फेवरेबल मीन्स दैट कंपनी सोल्ड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट in higher proportion. अब इन दोनों में से ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा था? इन दोनों में से ज़्यादा प्रॉफिटेबल शर्ट था. तो हमने शर्ट के 4,800 यूनिट सेल आउट करने के बजाय हमने उसके 6,000 यूनिट सेल आउट किए. तो इसका मतलब हमने शर्ट ज़्यादा बेचा, प्रॉफिटेबल था, तो मिक्स वेरिएंस फेवरेबल आ गया. जो लेस प्रॉफिटेबल था दैट वाज टी शर्ट. सो कंपनी सोल्ड लेस क्वांटिटी ऑफ टी शर्ट्स, and obviously that's something which you call adverse, right? So ये तो हो गया मिक्स वेरिएंस. अच्छा, अब इसके बाद जो आखिरी वेरिएंस है which is basically sales quantity variance. सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई ओवरऑल सेल्स कितनी होनी चाहिए थी कंपेयर्ड विद हमने ओवरऑल सेल्स कितनी की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, राइट. फॉर एग्जांपल अगर मैं सुजुकी की एग्जांपल लूँ तो मुझे अगर सुजुकी का क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है तो उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि जैसे सेल्स वॉल्यूम में देखते हैं ना, वॉल्यूम में तो हम प्रोडक्ट वाइज चल रहे होते हैं कि भाई आपने ऑल्टो कितनी बेची, कल्टस कितनी बेची, मे बी वैगन आर कितनी बेची, तो हम प्रोडक्ट वाइज चल रहे होते हैं. यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाइज नहीं चल रहे, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि थी सुजुकी की बजटेड सेल्स कितनी थी ऑल प्रोडक्ट्स कंपेयर्ड विद सुजुकी की एक्चुअल गाड़ियाँ हमने कितनी बेची हैं ऑल प्रोडक्ट्स, राइट, विद इन द सेम इंडस्ट्री, राइट. हम गाड़ी और बाइक को कंबाइन नहीं करेंगे, बाइक अलग सेगमेंट है, गाड़ी अलग सेगमेंट है, तो हम इंडस्ट्री वाइज चल रहे होंगे, सेगमेंट वाइज चल रहे होंगे. या जैसे मोबाइल में सैमसंग की हम एग्जांपल ले रहे हैं तो सैमसंग में हम ये नहीं देखेंगे क्वांटिटी वेरिएंस निकालते हुए कि यार मॉडल ए है, मॉडल बी है और व्हाट इज़ दैट. हमें देखेंगे कि ओवरऑल सैमसंग का कितना मोबाइल फ़ोन सेल आउट हुआ, ठीक है. मोबाइल में फिर हम लैपटॉप को नहीं मिक्स करेंगे, ठीक है. बस इसको मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगी
जब हम क्वांटिटी को मार्केट साइज़ और मार्केट शेयर में लेके जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल बस ये जहन में रखिएगा, क्वांटिटी में प्रोडक्ट वाइज नहीं चलते हम। ठीक है, तो बजटेड सेल्स वॉल्यूम था आपका 20। लेट मी ट्राई टू हाईलाइट इट नाउ बिकॉज इट्स टू मेसी राइट नाउ। Budgeted sales volume is 25,000, actual sales volume is 24,000. So company couldn't keep its pace with the sales. तो जो इसने सोचा था वो एक्चुअली हुआ नहीं। ठीक है, बजटेड सेल्स वॉल्यूम था आपका, बजटेड sales volume was around 25,000 irrespective of which product, and the actual sales volume was 24,000 राइट। तो 1,000 यूनिट्स का फ़र्क आ रहा है, 1,000 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, एंड ऑब्वियसली सिंस एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम इज़ लोअर इट्स फेवरेबल राइट। मल्टीप्लाई बाय अब now the problem is this is not one product, this is the total products, right? So we cannot take the contribution of t-shirts or shirt, right? We have to take the average contribution. So what will be the average contribution in this case? देखिए, एक तो मैं आप लोगों को एक्चुअल मैकेनिज़्म बता दूं कि एक्चुअल मैकेनिज़्म क्या है। एक्चुअल मैकेनिज़्म ये है कि हाँ, वी कैलकुलेट द बजटेड कंट्रीब्यूशन एंड डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। सो टी शर्ट्स में टी शर्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12 है, राइट, और बजट में हमने 20,000 यूनिट सेल करने थे। सो 20,000 यूनिट्स टाइम्स 12 प्लस 5,000 यूनिट्स टाइम्स 16, तो ये बजटेड सेल्स वॉल्यूम, बजटेड सेल्स रेवेन्यू बन रहा है 320,000 का। ठीक है, दिस इज़ बजटेड सेल्स रेवेन्यू, और ये सेल्स रेवेन्यू हमें कितने यूनिट से जनरेट करना था? 25,000 से, राइट। बजटेड सेल्स वॉल्यूम, तो एवरेज कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो आ रहा है 12.8 पर यूनिट, राइट। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस विद 12.8 फेवरेबल, तो ये दिस विल बी 12,800 फेवरेबल, एंड दिस इज़ व्हाट, this is sales quantity variance, right? ओके, तो इसको अब हम चेक करते हैं कि इज़ इट एक्चुअली इक्वल्स टू वॉल्यूम वेरिएंस और नॉट। दिस इज़ द होल पिक्चर ऑफ वेरिएंसेस, राइट। सो हमने कहा था कि ये 8,000 का जो वेरिएंस है दैट इज़ स्प्लिट इनटू मिक्स वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस, राइट। सो मिक्स वेरिएंस वाज अराउंड mixed variance was around 4,800 favorable, and quantity variance is around 12,800 favorable. I think there's one thing adverse, just a second. हाँ, ये तो फेवरेबल नहीं होगा ना, ये तो एडवर्स होगा बिकॉज एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम इज़ लोअर, दिस विल बी एडवर्स, सॉरी। हमें 25,000 यूनिट्स अलाउड करना था, वी एक्चुअली सोल्ड 24, सो इट्स एडवर्स। सो दिस 12,800 इज़ एडवर्स, राइट। सो इफ़ यू ऐड दीज टू वेरिएंसेस, 4,800 फेवरेबल माइनस 12,800 adverse, that is equals to 8,000 adverse, and this adverse is this 8,000 adverse sales volume variance, right? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसका कनेक्शन बता दूं कि कनेक्शन क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो क्वांटिटी वेरिएंस में और वॉल्यूम वेरिएंस में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वांटिटी वेरिएंस में भी हम बजटेड और एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे हैं और वॉल्यूम वेरिएंस में भी हम बजट और एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हैं, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या है। देखिए, जब हम यहाँ पे क्वांटिटी वेरिएंस निकाल रहे हैं ना, तो ये क्वांटिटी वेरिएंस है ऑन दी अजम्पशन कि हमारा जो मिक्स है वो हमने उतने ही यूनिट्स बेचे हैं जितने हमने बजट में सोचे थे, सॉरी, हमने उसी प्रोपोर्शन पे यूनिट्स बेचे हैं जो हमने बजट में सोचा था, क्योंकि जब हमने कंट्रीब्यूशन निकाला है ना 12.8 का, तो 12.8 का कंट्रीब्यूशन हमने बजट से निकाला है, ठीक है। तो बजट में जाहिर सी बात है वो एक एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स था, एक्चुअल प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स तो डिफरेंट था। हमने चूँकि बजटेड प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स दिया है, इसका मतलब हमने व्हेन वी वर कैलकुलेटिंग क्वांटिटी वेरिएंस वी एक्चुअली एज्यूम्ड और बाय डिफ़ॉल्ट द मिक्स वाज
एज पर बजट, एक्चुअल मिक्स नहीं है ये, राइट। तो एक्चुअल मिक्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, इसको विजुअलाइज करने के लिए लेट मी ट्राई टू टेल यू अनदर थिंग। देखिए बजटेड जो एवरेज कंट्रीब्यूशन आ रहा, जो एवरेज कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो आ रहा था 12.8, राइट। ट्राई टू फोकस दिस इज़ द एवरेज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी का एक और शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट ये है कि अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, बिकॉज अभी तो 2 प्रोडक्ट्स हैं तो हमने इस तरीके से कर लिए, अगर 3 या 4 प्रोडक्ट्स होती तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल होता। सो इफ़ यू वांट टू सेव सम 4, 5 और मे बी 10 सेकेंड्स ऑफ योर प्रीशियस टाइम, व्हाट यू कैन डू इज़, आप जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है इसको आप इसकी स्टैंडर्ड परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लें। जो मिक्स का परसेंटेज था आपको यही 12.8 मिलेगा। लेट मी ट्राई टू शो दिस। 12 टाइम्स 80%, बिकॉज 12 टी शर्ट था उसका 80%, प्लस शर्ट का सेलिंग प्राइस कंट्रीब्यूशन था 16 टाइम्स 20%, राइट। सो 12 टाइम्स 80% प्लस 16 टाइम्स 20% इज़ 12.8। तो ये क्या एज्यूम कर रहा है, इफ़ यू सी, ये एज्यूम कर रहा है कि आप उसी प्रोपोर्शन पे बेच रहे हैं प्रोडक्ट को जो आपने सोचा था, राइट। तो ये जो वेरिएंस आ रहा है ये है तो सेल्स वॉल्यूम का ही वेरिएंस, मतलब क्वांटिटी को ही मेजर कर रहा है, बट विद द अजम्पशन के जो प्रोपोर्शन है सेल्स का वो वही है जो हमने सोचा था, राइट। और जब हम वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हैं तो वॉल्यूम वेरिएंस में एक तो जो क्वांटिटी प्लस माइनस हुई है एक्चुअल में वो होती है, और अलॉन्ग विथ के जो मिक्स में भी जो गड़बड़ हुई है वो भी वॉल्यूम में बिल्ट इन होती है, ठीक है। तो बाकी दिस इज़ बेसिकली द बेसिक्स ऑफ सेल्स वेरिएंसेस। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लग इन करूँ जो हमने ऊपर बनाया था, तो मिक्स वेरिएंस इज़ 4800 फेवरेबल, quantity variance is 12,800 favor adverse, right. Overall it's 8,000 adverse, and price variance is 48,000 favorable. So sales volume variance is, this was favorable, so sales volume variance will be 40,000 favorable, right. तो अगर मुझे इसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है तो परफॉर्मेंस एनालिसिस इज़ क्वाइट सिंपल। द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, राइट, बिकॉज दे सोल्ड एट हायर प्राइसेस, बट it has a negative impact on volume. Volume was lower as compared with the expectations because overall sales volume is adverse. और ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम में भी जो चीज़ गड़बड़ कर रही है आपकी वो आपका टी शर्ट का बिज़नेस है, बिकॉज टी शर्ट का बिज़नेस में आपकी सेल्स कम हुई है, राइट। सो वॉल्यूम में एक्चुअली ये मसला है। मिक्स अगर हम देखें तो मिक्स में मुझे ये नज़र आ रहा है, मिक्स में ये चीज़ क्वाइट एविडेंट है कि जो टी शर्ट्स हैं उनकी सेल्स हमने कम की है, और जो शर्ट्स हैं उनकी सेल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हुई है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जी टी शर्ट्स तो आपका एक इस्टेब्लिश बिज़नेस था बट उसके हमने यूनिट्स कम बेचे हैं, राइट। ओवरऑल जो मुझे नज़र आ रहा है, ओवरऑल मुझे नज़र आ रहा है कि 1000 का डिफरेंस आ रहा है। 1000 के डिफरेंस की वजह से ओवरऑल वेरिएंस जो है वो आपका ये एडवर्स हो रहा है, ठीक है। सो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लास में हम इसका एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।